जेन ऑस्टन्स लिमिटेड रेंज। जेन ऑस्टन को उनके वर्किंग की, उनके राइटिंग्स की बेस पे अ लिमिटेड रेंज राइटर भी कंसीडर किया जाता है। एंड वाई शी इज़ कंसीडर्ड एज अ लिमिटेड रेंज राइटर, उनको हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि उनको एक लिमिटेड रेंज राइटर क्यों कहा गया। सो जेन ऑस्टन wrote a lot of precious works, ठीक है, बट अलॉन्ग विद दिस शी स्टेड इन अ वेरी लिमिटेड रेंज। बहुत ज़्यादा लिमिटेड रेंज में रहीं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैनवस था उनका, जिसको उन्होंने कभी लिमिट को क्रॉस नहीं किया। सो जेन ऑस्टन लिव्ड इन अ वेरी लिमिटेड रेंज। उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, वो सारी की सारी चीज़ें उनकी एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सी रेंज थी जिसके अंदर रह के उन्होंने सारी चीज़ें लिखी। शी लिव्ड इन अ विलेज, रॉट अ लॉट ऑफ एमरल्ड्स। एमरल्ड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, यू कैन से प्रेशियस स्टोन्स। तो हम उनके वर्क्स को उन प्रेशियस स्टोन से रेफ़र करते हैं या उन प्रेशियस स्टोन से उनको कंपेयर करते हैं कि शी रोट अ लॉट ऑफ एमरल्ड्स, बट अगेन स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ सिंप्लिसिटी, कि उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को कभी नहीं छोड़ा, बट शी रोट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स फॉर द लिटरेचर एंड फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ दैट टाइम. She did not took the subject of hypocrisy, poverty, aristocracy, politics, war. Aristocracy होता है elite class people का, poverty simple है, politics, war, hypocrisy, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस नहीं किया. बट इवन दो ये उस टाइम के बहुत मेजर सब्जेक्ट्स थे, बट शी डिड नॉट डिस्कस्ड दीज सब्जेक्ट्स. उन्होंने डिस्कस क्या किया, शी चूज टू राइट ओवर द लिमिटेड कैनवस अराउंड हर, ठीक है, जिनके उनके कैनवस में जस्ट देयर वर 3 to 4 फैमिलीज टू राइट ऑन, ठीक है. एंड शी वंस सेड दैट 3 to 4 फैमिलीज आर मोर देन एनफ टू राइट अपॉन. ये उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी नीस को, अपनी भांजी को एक लेटर लिखा था. उन्होंने कहा था उसमें कि 3 to 4 फैमिलीज आर मोर देन एनफ टू राइट अपॉन, कि अगर आप उन 3 to 4 फैमिलीज पे लिखना स्टार्ट करते हो तो दिस इज़ अ मोर देन एनफ सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग फॉर यू. ठीक हो गया. तो उन्होंने क्या किया था कि कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट, उन्होंने उस टाइम का मोस्ट इन सब्जेक्ट नहीं उठाया था. शी जस्ट रोट ओवर सम माइनर इश्यूज, बट शी बेसिकली यूज्ड मेजर थीम्स एज मैरिज एंड लव. And these are the main subjects and the main topics of global importance every time. Whenever we discuss about the girls in the society, the main thing or the first thing that comes in our mind is when are they going to get married? So at that time the situation was same that Jane Austen thought it important to write upon this topic, marriage and love. So Jane Austen wrote a lot about them, but as she lived in a village, she just took under consideration the 2 to 4 families and wrote a lot over them. There is a critic, F.R. Lewis. She said on Jane's limited range that her circle may be limited, but it is complete. Her world perfect. Her world is a perfect orb, means sphere, and vital. She used to write over different things, but majorly over love and marriage. So her circle is limited, just up to 3 to 4 families or something like that. Her circle is very limited, but it is complete. It is complete in every sense, in the thematic sense, you can say, in the plot sense, in the rules and regulations of the writing. In each and every sense, Jane Austen's work are perfect. They are complete in the sense we will discuss it later, in which sense it is said complete. Her world is perfect, orb means sphere, and vital. Vital means of great importance. Her works are of great importance in every time period, either it is the Greek age or it is the 21st century. Her works are of the major importance. So, Jane Austen's limited range carries vastness of themes. The major thing that makes Jane Austen's limited range a most beautiful thing is that it carries vastness of themes.
She limited her works to whatever fall in the depicted range of her. Well, for example, if she's living in a village, she just wrote about the things that are around her, about their relatives, about her own life, about 2 to 3 families around her. Means उन्होंने सिर्फ उस चीज़ के लिए लिखा जो उनके interaction में, जो उनके experience में आई. She just wrote about the things that came into her own interaction and experiences. So, depicted the range of her in her themes and vastness in idea in Pride and Prejudice. The novel we discussed earlier is Pride and Prejudice, and in this theme, she depicts the society and marriage so vastly and according to the 18th century norms, social decorum and conventions. उन्होंने उस टाइम के norms को, social decorum को और उस टाइम के कन्वेंशन को बहुत क्लियरली पोर्ट्रे किया है उनकी नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में. ठीक है, इसमें किसी कैरेक्टर का साइको एनालिसिस नहीं है, कोई ऐसा अपर लेवल का वॉर डिस्कस नहीं है, कोई थीम डिस्कस्ड डेथ का नहीं है, कि इवन एक भी डेथ नहीं हुई हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस में. तो क्या है कि वी डू नॉट हैव एनी डिस्कस्ड थीम ऑफ वॉर और एनी हिपोक्रेसी और एनी अदर थिंग. It is just about the marriage, the love, and the importance of marriage in, you can say, the Greek age as well as in every age of the world. So, Pride and Prejudice looks like a beautiful picture painted by an author with a wide and broad meaning. Every time an author paints a picture, it is not only the picture or the portrayed colors. It is actually a wide range of meanings in the hidden and beautiful colors. And this is the same thing Jane Austen did by writing Pride and Prejudice, that she gave it a beautiful meaning and a beautiful detailed structure. So, we were discussing about Pride and Prejudice. She depicts the society and marriage so vastly and according to the 18th century norms, social decorum and conventions, tells the importance of marriage for a girl in Greek age. Greek age में एक लड़की के लिए शादी करना is not you can say an ungoverned passion. Ungoverned passion means शौकिया काम, कि अगर उसको आपने उसको करना है तो well and good, और अगर आपने उसको नहीं करना तो it is also okay. It was not like that for the girls in Greek age, but a phenomena and an institution of life. It means the most important things of life just revolved around marriage and love in the Greek age just for girls. By dealing with the characters in Pride and Prejudice, she reveals about the wide range of evils residing in the man. मतलब कि अगर हम कहें कि उनकी लिमिटेड रेंज जो थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को, मैरिज एंड लव को डिस्कस किया नहीं. शी ऑल्सो डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ evils that reside in the mind of a man, जिसमें pride, self-depictions, pretendedness, class consciousness and presuppositions बहुत ज़्यादा हैं. प्राइड हमने देखा, वो जो उसका डार्सी के कैरेक्टर में हमने प्राइड को देखा बहुत ज़्यादा. सेल्फ डिपिक्शन के कैरेक्टर में हमने यू कैन से हर इंसान को देखा. प्रिटेंडेडनेस के कैरेक्टर में हमने उनकी जो वेल्दी आंट थी उनको देखा, और भी 2-3 कैरेक्टर्स हमने देखे प्रिटेंडेडनेस में. विकम को देखा, जिसने प्रिटेंड किया कि ही इज़ अ वेरी लॉयल एंड वेरी ग्रेट पर्सन. और क्लास कॉन्शियसनेस में हमने अगेन डार्सी को देखा, एंड प्री सपोजिशंस में हमने एलिज़ाबेथ को देखा. तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने, ये सारी हर इंसान के दिमाग में होती हैं, ये सारे फितूर हर इंसान के दिमाग में होते हैं, और उन्होंने इन सारे ईवल्स को भी डिस्कस किया अलॉन्ग विद डीलिंग विद द मेजर थीम दैट इज़ मैरिज एंड लव. सो ये तो थी उनकी लिमिटेड रेंज के फीचर्स. अब आते हैं फ्लॉज की तरफ, कि फ्लॉज क्या थे. जेन ऑस्टन की रेंज को
लिमिटेड इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज शी डेल्ट ऑफन विद फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव, यानी कि शी फोकसेस मेनली ऑन द वुमेन लीविंग द मैन। उन्होंने मैन को कहीं डिस्कस नहीं किया, शी जस्ट एक्सक्लूडेड मैन एंड फोकस्ड ऑन द वुमेन ओनली, which makes her range limited. Often, obviously, when you ignore one sex and just discuss about the another, you can say gender, you are ignoring men completely. उन्होंने men को कहीं discuss नहीं किया. You are just talking about the main lead as a woman and the main lead as, मतलब you are just talking about the women and the woman. तो वहाँ पे आपकी range should be the limited range. उसको limited range ही कहा जाएगा. अच्छा, इनके लिए बहुत सारे क्रिटिक्स के पॉजिटिव व्यूज़ भी थे कि लॉर्ड डेविड सेसिल ने कहा था कि जेन ऑस्टन डजंट स्टडी कैरेक्टर्स इन द रिलेशन टू गॉड, टू पॉलिटिक्स और टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ये उनकी लिमिटेड रेंज का एक प्लस पॉइंट था कि उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स और गॉड के साथ रिलेशनशिप या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में उन्होंने कभी भी अपने उनको डिस्कस नहीं किया था। क्यों? बिकॉज शी ओनली वांटेड टू प्रिडिक्ट और यू कैन से टू depict what revolves around her or what revolves around her in the society or in the form of the relatives or the female characters or everything like that. So finally coming towards the conclusion, अगर हम जेन ऑस्टन के फ्लॉज को निकाल दें, उनकी जो लिमिटेड रेंज है जिसकी रीज़न उनके कुछ फ्लॉज हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो उनकी लिमिटेड रेंज भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। कैसे? क्योंकि उन्होंने जिस जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया, वट एवर शी डिस्क्राइब इन हर वर्क्स बिकेम द वाइटल इशू ऑफ एवरी टाइम ऑफ द वर्ल्ड। कि कोई भी एज हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, वेदर इट इज़ द ग्रीक एज और द 16th और द 15th और इट इज़ 1900s or 1800s or it is the 21st century, marriage is always the most important thing to be considered in a woman's life. So जो उन्होंने अपने नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में डिस्कस किया, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एवरी टाइम ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जो हमने पहले एक क्रिटिक जो थे जिनका हमने देखा था, लॉर्ड डेविड सेसिल ने व्यू दिया कि दो हर रेंज इज़ लिमिटेड येट हर लिमिटेड रेंज कैन बी एनलार्ज्ड इफ़ द थीम्स कैन बी एनालाइज्ड क्रिटिकली। जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की कि अगर उनके थीम्स को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आ सकते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं मेजर थीम्स की तरफ। हमारे मेजर थीम्स कौन कौन से हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। व्हेन वी डिस्कस द स्टोरी लाइन, हमने देखा कि मैरिज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मिसेस बैनेट के रोल में, कि शी ऑलवेज वांटेड हर 5 daughters टू बी मैरिड विद द ग्रेट मैन और विद or at least married, no matter with the great men or with you can say an average man, she just wanted her daughters to get married. प्राइड का थीम हमने देखा डार्सी के कैरेक्टर में कि डार्सी वॉज वेरी प्राउडी पर्सन, और हमने एलिजबेथ के कैरेक्टर में प्रेजुडिस देखा। प्राइड का थीम हमें और डार्सी के सिस्टर के कैरेक्टर में भी देखने को मिलता है, और हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है प्राइड का थीम। Pride actually shifted from one character to another throughout the story. प्रेजुडिस हमारे पास प्री सपोजिशंस हैं कि प्रेजुडिस हमने देखा एलिजबेथ के कैरेक्टर में कि एलिजबेथ ने अपने प्रेजुडिस की वजह से कितना कुछ फेस किया। शी लेफ्ट डार्सी, उसने डार्सी को गलत प्री सपोज किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। उसके पहले इम्प्रेशन की वजह से डार्सी आगे कुछ भी अच्छा करता था, शी जस्ट थॉट इट ऑफ फेक एक्ट ऑफ प्रिटेंडेडनेस। तो उसके प्रेजुडिस ने उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट थीम हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का थीम भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? कि डार्सी वॉज वेरी क्लास कॉन्शियस, डार्सी बहुत ज़्यादा क्लास कॉन्शियस था, और वो जो पर्सन था वो उसने एलिजबेथ के लिए भी एक रूड कमेंट पास किया था कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट प्रिटी हैंडसम टू टेम्प्ट मी।
उसने एलिज़ाबेथ को भी बहुत ज़्यादा उसने प्राउडली लुक दी थी, और उसके अपने क्लास कॉन्शियस होने की वजह से ही जस्ट थॉट हिमसेल्फ एज द, यू कैन से द लेजेंडरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और वो किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं देता था जो उसकी क्लास का नहीं होता था. सो दीज आर द फोर मेजर themes were discussed in Pride and Prejudice, and this was all about the novel Pride and Prejudice.